بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں زہریلی فضا میں پہلی بار تازہ ہوا کا جھونکا۔ لاہور والوں کو بارش کا سگنل مل گیا، آسمان سے آب شفا برسنے کو تیار۔ شہر میں کل سے بارش کی پیشگوئی، باغوں کے شہر کو آلودگی سے نجات ملنے کا امکان ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 295 میں ریکارڈ کی گئی۔ خواتین، بچے اور بوڑھے نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آلودگی سے ہٹے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، بارش کا سگنل مل گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز شہر میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے ہفتے میں بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 295 ریکارڈ کی گئی۔ مختلف علاقوں میں آلودگی کی شرح 700 سے تجاوز کر گئی۔ برکی روڈ پر سب سے زیادہ آلودگی کی شرح 724 ریکارڈ کی گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں آلودگی کی شرح 644 رہی۔ جوہر ٹاؤن 386، عسکری 10 میں آلودگی کی شرح 265 ریکارڈ کی گئی۔ بیدیاں روڈ 197، ڈی ایچ اے فیز 5 میں آلودگی کی شرح 196 ریکارڈ ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک کا استعمال کریں اور کھلی فضا میں ورزش سے گریز کریں۔ ماہرین نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کو یقینی بنانے اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ کا پولیس کی دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ تعلیمی اداروں سمیت تمام سرکاری محکموں کی گاڑیاں چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جسے شاہد کریم نے اس موقع کیس میں کہا اسکول موسم سرما میں ہفتے والے دن بند ہونے چاہیے۔ اتوار کو مارکیٹس کی بندش پر غور کیا جائے۔ درختوں کی کٹائی بارے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے پولیس، تعلیمی اداروں اور تمام سرکاری محکموں کی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ درختوں کی کٹائی بارے پی ایچ اے کو اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ناصر باغ میں درختوں کی کٹائی سے متعلق ایل ڈی اے، پی ایچ اے اور محکمہ ماحولیات سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز نے کیس کی سماعت بارے سٹی 42 سے گفتگو بھی کی۔ کوئی بھی ایسی گاڑی جو دھواں چھوڑ رہی ہے اس کو آن روڈ نہیں آنے دیا جا رہا، چاہے وہ پرائیویٹ وہیکل ہے یا سرکاری وہیکل ہے، تمام وہیکلز کے اوپر اسٹرکٹ کارروائی کی جا رہی ہے۔ درختوں کی کٹائی اور ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے مکمل ایس او پیز بنانے کا حکم پی ایچ او کو دیا گیا ہے، تاکہ اگر آئندہ کوئی بھی درخت ٹرانسپلانٹ ہونا ہے تو اس کے ایس او پیز ہوں اور ان کے مطابق وہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ناصر باغ کے 123 درخت کامیابی سے ٹرانسپلانٹ کیے جا چکے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پی ایچ اے کی اجازت کہاں ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ اجازت موجود ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ شہر میں درخت کاٹے جا رہے ہیں، جس پر عدالت نے پی ایچ اے کو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا کر رپورٹ دینے کا دوبارہ حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ عدالت اور محکمہ ماحولیات کی کوششوں سے شہری دوبارہ صاف آسمان دیکھ رہے ہیں۔ شہر کسی ایک وزیر یا افسر کا نہیں۔ ایل ڈی اے کو منصوبوں بارے تنبیہ کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ عدالت نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو عدالت کے احکامات ہیں اس پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے جو ایفرٹس کر رہی ہے، اس سے ماحول میں کافی بہتری آ رہی ہے، اور پہلی مرتبہ آپ دیکھیں تو لاہور میں لوگوں کو سنی ڈیز مل رہے ہیں اس موسم کے اندر، جبکہ اسموک پیک پر ہوتی تھی۔ جسٹس شاہد کریم نے پنجاب حکومت کے لا آفیسر سے استفسار کیا کہ سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا، جس پر وکیل پنجاب حکومت نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ہفتے کے روز سکولز بند ہونا چاہیے، اتوار کے روز مارکیٹس کی بندش پر بھی غور کیا جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ جیل کا خوف یا چالان کی مار، بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کی نیندیں حرام۔ سینکڑوں ڈرائیور لائن میں لگ گئے۔ لائسنس دفاتر پر تاریخی رش، جگہ جگہ قطاریں۔ لائسنس بنوانے کی رفتار میں 629% اضافہ ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,07,000 شہریوں نے لائسنس کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ 16 سال کے بچوں کو لائسنس کے لیے آرڈیننس میں ترامیم کی سمری بھی ارسال کر دی گئی۔ آئندہ کوئی وارڈن بھی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھے گا۔ ٹریفک قوانین میں سختی کام کر گئی۔ پنجاب میں نئے ٹریفک قوانین کے نفاذ کے بعد لائسنس کے اجرا میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,07,000 شہریوں نے لائسنسنگ سہولیات سے استفادہ کیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 1 لاکھ سے زائد شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ 28,800 سے زائد شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ 78,000 سے زائد شہریوں نے لرننگ ریگولر انٹرنیشنل لائسنس کی تجدید کروائی۔ 15,000 سے زائد شہریوں نے گمشدہ ڈرائیونگ لائسنس کو دوبارہ حاصل کیا۔ 16 سالہ بچوں کے لائسنس کے اجرا کے لیے
सेक्शन 4 में तरमीम की जाएंगी। IG पंजाब ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक तरमीम के बाद 16 साल से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे, जिसकी फीस वजीर आला की हिदायत पर सिर्फ 1000 रुपए मुकर्रर की गई है। कम उम्र बच्चों का मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मंसूख हो जाएगा। 18 साल की उम्र के बाद लाइसेंस नया बनवाना पड़ेगा। तरमीम में मंजूरी के बाद पंजाब भर में 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल का लाइसेंस का अजरा शुरू कर दिया जाएगा। समरी DIG ट्रैफिक वकास नजीर की जानिब से तैयार करके IG पंजाब को भिजवाई गई थी। कानून का वार, प्रोटोकॉल सब बेकार, ताकतवर नादहिंदगान भी कानून की गिरफ्त में। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस की गाड़ी भी बंद, ई चालान भरने पर जान छूटी। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी की गाड़ियां ब्लैक लिस्ट, 55 सरकारी महकमों की तकरीबन 700 गाड़ियां सड़कों पर रोकी गईं। ताकतवर नादहिंदगान भी कानून की गिरफ्त में आ गए। 7 रोज में 700 से ज्यादा नादहिंदा सरकारी गाड़ियों से ई चालान्स की रिकवरी कर ली गई। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ी भी ई चालान नादहिंदा निकली, चालान्स की अदायगी करवाई गई। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक वज़ीर आला के PSO की गाड़ी भी नादहिंदा होने पर रोक ली गई। मुशीर वज़ीर आला स्क्वाड की गाड़ियां भी ई चालान नादहिंदा थीं। चीफ सेक्रेटरी के PSO की गाड़ी भी नादहिंदा होने पर रोकी गई। मुतअद्दिद सेशन और एडिशनल सेशन जजेस की गाड़ियां भी नादहिंदा होने पर रोकी गयी। ई चालान नादहिंदगान में 55 सरकारी महकमों की गाड़ियां शामिल हैं। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान की गाड़ियां भी नादहिंदा निकली। उधर SSP स्पेशल ब्रांच की नादहिंदा गाड़ी से भी रिकवरी कर ली गई। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम नादहिंदा गाड़ियों से अदायगी करवाई। पीरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला का पीरा फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दिया गया। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग सेशंस शुरू होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, स्टेट ऑफ द आर्ट पीरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। कहा कानून जरूर नाफिज किया जाएगा, मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वजीर आला पंजाब ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में पैरा फोर्स ब्रीफिंग दी गई, नए फैसले किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हुक्म दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कानून हर हाल में नाफिज, मगर अवाम से रवैया दोस्ताना और बाइज्जत हो। अवाम में नेकनामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। वजीर आला पंजाब ने कहा कि कानून जरूर नाफिज किया जाए, मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। अवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। बल्दियाती एक्ट को हदबंदियों के बाद नाफिज करने का फैसला, ट्रांजिशन तक एक्ट 2013 ही नाफिज रहेगा। नए एक्ट नाफिज होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 456 हो जाएगी। लाहौर समेत सूबा भर में 30 टाउन कारपोरेशन होंगी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 6500 से तजावुज कर जाएगी। नए कानून के निफाज पर बल्दियाती इदारों में 2 गुना इजाफा होगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को हदबंदियां मुकम्मल होने के बाद नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। नया बल्दियाती एक्ट 2025 नाफिज होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 456 हो जाएगी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 6500 से तजावुज कर जाएगी। मौजूदा कानून के तहत यूनियन काउंसिल्स की तादाद 4015 है। बल्दियाती इदारों की ट्रांजिशन मुकम्मल होने तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ही नाफिज रहेगा। बल्दियाती एक्ट 2013 में बल्दियाती इदारों की कुल तादाद 229 थी। नए कानून के फास पर बल्दियाती इदारों में 2 गुना इजाफा होगा। एक्ट 2013 के तहत एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनी। नए एक्ट के तहत लाहौर समेत सूबा भर में 30 टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। बल्दियाती एक्ट 2013 में म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 182 थी। नए बल्दियाती एक्ट में 254 म्यूनिसिपल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। आलूदगी से बचाव के लिए इक़दाम, लाहौर समेत सूबे भर में जदीद मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। खातीन वकला की सहूलत, अदालती ढांचे की बेहतरी के लिए 2 अहम तरक्याती स्कीमों के PC1 तैयार कर लिए गए। धीरानी प्रोग्राम के लिए 850 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। लाहौर मेट्रो बस सिस्टम की रीमॉडलिंग, सोलराइजेशन के लिए 374 मिलियन मुंतकिल कर दिए गए। आलूदगी से बचाव के लिए इक़दाम, लाहौर समेत सूबे भर में जदीद मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 25 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की तनसीब के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए
5 अरब 42 करोड़ रुपए के खतीर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक नए स्टेशन से न सिर्फ माहौलियाती इंतजाम बेहतर होगा बल्कि पॉलिसी साजी, स्मोक कंट्रोल इक़दामात और अवामी सेहत से मुतल्लिक फैसलों में भी मुअस्सर मदद मिलेगी। खवातीन वकला की सहूलत और अदालती ढांचे की बेहतरी के लिए 2 अहम तरक्याती स्कीमों के PC1 तैयार कर लिए गए। सूबे के तमाम अजला में लेडी बार रूम्स और डे केयर सहूलियात की तामीर का मंसूबा पेश किया गया। मंसूबे के तहत खवातीन वकला के लिए 100 से जायद महफूज और जदीद बार रूम्स तामीर होंगे। इन बार रूम्स की तामीर पर 1 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी तरह लाहौर में 4 जुडिशल टावर्स की तामीर के मंसूबे भी मंजूरी के मरहले में दाखिल हो चुके। मजमूई लागत का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक इन मंसूबों की मंजूरी के बाद बजट जल्द जारी किया जाएगा। धी रानी प्रोग्राम के लिए 850 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। महकमा सोशल वेलफेयर बजट से 3000 इज्तिमाई शादियां कराएगा। लाहौर मेट्रो बस सिस्टम की रीमॉडलिंग, सोलराइजेशन के लिए 374 मिलियन मुंतकिल कर दिए गए। महकमा ज़राअत के वाटर प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया। FIA का इमिग्रेशन काउंटर्स को AI बेस्ड बनाने का फैसला। इमिग्रेशन से पहले बाहर जाने वाले मुसाफिर डाटा एंटर करना होगा। डायरेक्टर FIA अली ज़िया ने City 42 से गुफ्तगू में कहा, मुसाफिर एयरपोर्ट पर दस्तावेजात पूरी लेकर जाएं, कोई ऑफलोड नहीं कर सकेगा। मुल्क भर के इमिग्रेशन काउंटर्स को AI बेस्ड बनाया जाएगा। FIA ने फैसला कर लिया। इमिग्रेशन से पहले सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों को अपना डाटा एंटर करना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने वाले मुसाफिरों को चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करने की सहूलत होगी। मुसाफिरों को सॉफ्टवेयर की मदद से QR कोड मिल जाएगा। मुसाफिर के तमाम डॉक्यूमेंट्स और वीजा समेत प्रोसेस को AI की मदद से जांचा जाएगा। डाटा एंट्री के कुछ देर बाद मुसाफिर को इल्म हो जाएगा कि सफर की इजाजत होगी या नहीं। डायरेक्टर FIA अली ज़िया ने City 42 से गुफ्तगू में कहा, मुसाफिर एयरपोर्ट पर दस्तावेजात पूरी लेकर जाएं, कोई ऑफलोड नहीं कर सकेगा। डायरेक्टर FIA का कहना है कि मुसाफिरों को सहूलियात देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। लेस्को का इंसुलेटेड बकेट माउंटेड क्रेन्स खरीदने का फैसला। बकेट क्रेन सब डिविजनल दफातर में लाइन स्टाफ को फराहम की जाएंगी। जदीद बकेट क्रेन से लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने में आसानी होगी। दूसरी जानिब लेस्को सिंगल फेस मीटर्स के बहरान पर काबू पाने में नाकाम। 3 माह गुजरने के बावजूद सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन ना दिए गए। लेस्को ने बरकी लाइनों पर काम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से इंसुलेटेड बकेट माउंटेड क्रेन्स खरीदने का फैसला कर लिया। कंपनी के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने इंसुलेटेड बकेट माउंटेड क्रेन्स की खरीदारी का मशरू कर दिया। बकेट क्रेन सब डिविजनल दफातर में लाइन स्टाफ को फराहम की जाएगी। बकेट क्रेन्स की मदद से लाइन स्टाफ को करंट लगने के वाकयात से बचाया जा सकेगा। लेस्को ने 40 बकेट क्रेन्स की खरीदारी के लिए काम का आगाज कर दिया, जिसको दिसंबर में मुकम्मल किया जा सकेगा। दूसरी जानिब लेस्को में सिंगल फेस मीटर्स का बहरान बरकरार है। कंपनी 3 माह का वक्त गुजरने के बावजूद सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन ना दे सकी। ज़राए ने बताया कि अगस्त में सिंगल फेस मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर NOC जारी करने का फैसला किया गया, जिसके बाद डिमांड नोटिस का इजरा करने के बजाय मुतल्लिका दफातर को NOC जारी करने का रास्ता भिजवाया गया था। सार्फिन ने अगस्त से कबल लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाए, लेकिन मीटर्स नहीं मिल सके। लेस्को और मीटर साज कंपनीज के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात होने पर सार्फिन को दर-बदर होना पड़ा है। वज़ीर आला तालीमी इस्लाहात के 2 प्रोग्राम जमूत का शिकार। 2 बड़ी तालीमी स्कीमों पर निस्फ साल गुजरने के बावजूद सिफर कारकर्दगी। खतरनाक बोसीदा इमारतों वाले स्कूलों की तामीर नौ पर पेशरफ्त ना हो सकी। 3 अरब के फंड्स जारी भी हुए मगर फिजिकल प्रोग्रेस सिफर रही। खतरनाक और बोसीदा इमारतों वाले स्कूलों की तामीर नौ पर पेशरफ्त ना हो सकी। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस मंसूबा भी अमली तौर पर शुरू ना किया जा सका। पंजाब में वज़ीर आला तालीमी इस्लाहात के 2 प्रोग्राम जमूत का शिकार हो गए। 2 बड़ी तालीमी स्कीमों की निस्फ माली साल गुजरने के बावजूद कारकर्दगी सिफर रही। दस्तावेजात के मुताबिक खतरनाक और बोसीदा इमारतों वाले स्कूल्स की तामीर नौ के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद काम सिफर रहा। दूसरी जानिब 5 अरब रुपए के बजट के साथ शुरू किए जाने वाला स्कूल्स ऑफ एमिनेंस मंसूबा भी अमली तौर पर शुरू नहीं हो सका। दस्तावेजात के मुताबिक दोनों मंसूबों की तकमील जून 2026 तक मुकर्रर है। इसके बावजूद इब्तिदाई काम का आगाज ना होना संगीन प्लानिंग और गवर्नेंस की नाकामी को जाहिर करता है। अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा है।
महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती, हजारों साथ इन सर्विस प्रमोशन के मुंतज़िर। एजुकेशन अथॉरिटी साल में 2 बार प्रमोशन कमेटी का इजलास करने की पाबंद है। उधर स्कूलों के डे केयर सेंटर्स में खुफिया कैमरे गायब हैं। पंजाब हुकूमत ने CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया है। हजारों असातिज़ा इन सर्विस प्रमोशन के मुंतज़िर हैं। एजुकेशन अथॉरिटी साल में 2 बार डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास करने की पाबंद है। हजारों असातिज़ा इन सर्विस प्रमोशन के मुंतज़िर हैं। एजुकेशन अथॉरिटी साल में 2 बार डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास करने की पाबंद है। मुतअद्दिद एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से साल में एक भी DPC मुनाकिद नहीं की जाती। महकमा स्कूल एजुकेशन का मुताबिक रवां साल 3000 प्राइमरी असातिज़ा को प्रमोशन दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का मुताबिक मुस्तकिल DPC के लिए भी अथॉरिटीज को दोबारा हिदायत जारी कर दी गई हैं। उधर स्कूलों में कायम डे केयर सेंटर्स में CCTV कैमरों की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ हुआ है, जिस पर पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में डे केयर सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। तमाम अज़्ज़ा में मॉनिटरिंग सिस्टम को फ़आल बनाने की हिदायत जारी कर दी। ख़वातीन के लिए महफूज और शफाफ माहौल यकीनी बनाने के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएं। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को अहकामात पर अमल दरामद के लिए मरासिया भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर, इनरोलमेंट, कंप्यूटर लैब्स, सिक्योरिटी का फुकदान का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की इंस्पेक्शन के लिए 22 कमेटियां बना दी। कमेटियां पंजाब भर के स्कूल्स को विजिट करेंगी और रिपोर्ट जमा करवाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जामिया रिपोर्ट की रोशनी में हिकमत अमली बनाई जाएगी। जौहर टाउन में UMT रोड पर सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। सड़क पर जाबजा सीवरेज का गंदा पानी जमा रिहायशियों और तलबा को मुश्किलात का सामना है। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी आने और जाने में दिक्कत पेश आती है। जौहर टाउन में UMT की मरकजी सड़क पर सीवरेज का मसला संगीन हो गया। सड़क पर सीवरेज की नकासी न होने से गंदा पानी जमा रहने लगा। सीवरेज पानी के बायस रिहायशियों और तलबा को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। अतराफ में कायम होटल्स और कैफे मालिकान भी परेशान हैं। कहते हैं गाहक सीवरेज पानी के बायस इधर का रुख नहीं करते, कारोबार ठप होकर रह गया। हमने इसकी सारी ये सीवरेज वगैरह ठीक भी करवाई है। ये यूनिवर्सिटी वाले पानी बाहर निकाल देते हैं, इनके अंदर के प्रॉब्लम है, ये सारा मेन रोड पे कर देते हैं और कोई भी आवाज नहीं उठाता। यहाँ पे सबको पता है। गुजरने में बहुत मुश्किल होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। जब गुजर रहे होते हैं टायर आगे वाला टूट जाए तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे टायर है। तलबा कहते हैं 1 साल से सीवरेज का मसला वबाले जहां बना हुआ है। गंदे पानी से कपड़े नापाक खराब हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी से कैफे जाने के लिए घूम कर आना पड़ता है। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे हॉस्टलाइट्स वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ से गुजरना इस कदर दुश्वार है। देखें अगर कोई घर से कपड़े पहन कर आते हैं, यहाँ भी गंदी शीटें गिर जाती हैं, गटर का पानी है, कपड़ों पर ऐसे निशानात पड़ जाते हैं जो कि उतरना भी मुश्किल होता है। हम हॉस्टलाइज हैं तो जब हम खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करने आते हैं तो हमें गुजरना बहुत मुश्किल हम गुजरते हैं। हमारे कपड़े खराब होते हैं, नमाज वगैरह पढ़ा जब यूनिवर्सिटी आते हैं तब हमारे कपड़े खराब हो रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। तलबा ने इंतजामिया से सीवरेज का मसला जल्द अज जल्द हल कराने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ आदिया नाज, सिटी 42। कैंसर के इलाज के लिए क्रायोबलेशन मशीनों की खरीदारी टेक्निकल मसाइल हल करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। प्रोफेसर फारूक अफजल कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। सैयद आसिम अली, डॉक्टर जुनैर मसूद कमेटी में शामिल हैं। कमेटी मशीनों की खरीदारी से मुतालिक टेक्निकल एतराज़ात का जायजा लेगी। कैंसर के इलाज के लिए क्रायोबलेशन मशीनों की खरीदारी के दौरान टेक्निकल इशूज़ को हल करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फारूक अफजल कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। GM हेल्थ के प्रोजेक्ट्स IDEP सैयद आसिम अली, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर जुनैर मसूद, डॉक्टर बर्क और इलेक्ट्रिक इंजीनियर UET कमेटी में शामिल हैं। कमेटी क्रायोबलेशन मशीनों की खरीदारी से मुतालिक तमाम टेक्निकल एतराज़ात का जायजा लेगी और खरीदारी में हिस्सा लेने वाली फर्मों की शिकायत का अजाला करेगी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान के ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। एहसन रजा का जनरल आसिम मुनीर को CDF बनाने पर खराज तहसीन। हुकूमती रुकन की तकरीब पर अपोजिशन की हंगामा राय। अपोजिशन रुकन इम्तियाज शेख ने कोरम की निशानदही कर दी। हुकूमती अरकान की मतलूबा तादाद तरानवे तक न पहुँच सकी। पंजाब असेंबली का इजलास 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। हुकूमती रुकन असेंबली एहसन रजा ने जनरल आसिम मुनीर को CDF बनाने पर खराजे तहसीन पेश किया और बानी तहरीक इंसाफ को मुल्क व कौम के खिलाफ साजिश का मुर्तकिब करार दिया। बानी PTI को साजिश करार देने पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा राई की गई। जनरल आसिम मुनीर साहब को 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं
उनकी सरपरस्ती में मियां शहबाज शरीफ ने जो ये हमारे पाकिस्तान के हीरो को आज जो उन्होंने ये चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बनाया है, मैं कहता हूं कि आज पूरी कौम मियां नवाज शरीफ को सलाम पेश करती है। इजलास में वक्फा सवालात के दौरान SNGAD से मुतल्लिक सवालात के जवाबात सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने दिए। हुकूमती रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने सूबा भर के तालीमी इदारों में पंजाबी जुबान की इजाजत देने पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। दुनिया में बसने वाले तमाम पंजाबियों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहना जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, कि चंद दिन पहले वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब दे अंदर तालीमी अदारियां पंजाबी जबान पढ़ाण और इहदी तरवीज दा हुक्म जारी किया। अपोजिशन रुकन असम्बली इम्तियाज शेख ने कोरम की निशानदेही की। हुकूमती अरकान की मतलूबा तादाद 93 तक न पहुंच सकी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास 8 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में वॉलंटियर डे साथ इख्तितामी तकरीब में 61 वॉलंटियर टीम में शरीक हुई। सूबाई वजीर सलमान रफीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह शाह, बरतानवी हाई कमीशन से बेन वारिंगटन शरीक हुए। मुल्तान की टीम ने मुकाबला जीत लिया। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर में मुनक़िदा 4 रोज़ा इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डेजर्ट चैलेंज इख्तिताम पजीर। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, ब्रिटिश हाई कमीशन से बेन वारिंगटन, पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह शाह और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने खुसूसी शिरकत की। मुल्तान की टीम ने मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की, टोबा टेक सिंह दूसरी, जबकि ब्लू स्काई चाइना और गुजरात की टीमें मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन की हकदार ठहरी। ख्वाजा सलमान रफीक ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रजाकार इंसानियत की खिदमत का अजीम फरीजा अदा कर रहे हैं। लोगों की जान बचाने वाले अहलकार हमारा फख्र हैं। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इन रेस्लर्स को पता है कि अपनी ज़िंदगी की बाजी अपनी कौम के लिए, अपने बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए, बेटियों के लिए, आजर के लिए, ताजर के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, हर शोबा जिंदगी के इंसानों को बचाने के लिए ये रेस्क्यूअर्स अपनी जानों का नजारा पेश करते हैं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि उनका मकसद है कि हर घर में एक तरबियत याफ्ता जिंदगी बचाने वाला शख्स मौजूद हो। मैं सोचता कि जी ये नहीं हो सकता तो शायद ये कभी भी ना बनता। कहाँ एक बंदे से शुरू किया था और आज माशाल्लाह इतनी सारी टीम है, तो ये सब चीज़ें नामुमकिन लगती थी। लेकिन जब आप एफर्ट करें सच्चाई ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आज रेस्क्यू 11122 इसीलिए पूरे जनूबी एशिया के अंदर पहली अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाई होने वाली सर्विस है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। इंटरनेशनल वॉलंटियर्स चैलेंज में मुल्क भर से 61 वॉलंटियर्स टीमें शरीक हुई। चीन की 2 और खवातीन की 13 टीमें भी इवेंट का हिस्सा थीं। कैमरामैन मोहम्मद अंजुम के साथ वकास अहमद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।